Welcome to this all's noon talk शो। आज का सेशन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि एक गीत आपको सुनाने लगा हूँ। शुरू में तो नहीं सुनाऊंगा। लेट मी सी सो मेनी others might chip in and might lose the opportunity of listening to my patriotic number today। और आज जैसे शहीद ऊधम सिंह को हम लोग याद करते हैं और बड़ी इज़्ज़त के साथ और बड़ी ओबीसेंस के साथ। और प्रिंसिपल साहब गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है वो हम लोगों ने शहीद ऊधम सिंह को एक कमोद सिख मान लिया, जबकि वो इन शहीदान वतन की, इन वतन पे कुर्बान हो जाने वाले रणबांकुरों की कोई ज़ात नहीं हुआ करती थी। हम लोग आजकल जो है वो बांट लेते हैं कि ये सो एंड सो पंडित थे, ये सो एंड सो ये थे वो थे, लेकिन उस शहीद को, उस स्वतंत्रता सेनानी को करोड़ों 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 हमारी सलाम। और जहाँ भी हैं वो उन्हें हमारा सलाम पहुँचे देशवासियों का। उषा पांडे जी गुड मॉर्निंग, संजीव अरोरा गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत करूँगा मैं एक ऐसे सीन से, एक ऐसे सिनारियो से जहाँ उसको मैंने नाम मेरे मिडिल को हाउस डिवाइडेड दिया है। और हाउस डिवाइडेड कैसे कि हम लोग मिलके जैसे एक घरौंदा बनाते हैं, जैसे एक नशेमन बनाते हैं, जैसे एक हाउस बनाते हैं, जैसे एक होम बनाते हैं, जैसे एक फैमिली बनाते हैं, जैसे ख़ानदान बनता है। लेकिन उसमें हर आदमी यदि ये कहने लगे कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, आई एम द सुपीरियर मोस्ट पर्सन अराउंड, इवन इफ इट इज़ ए हाउस इन द मेकिंग। और इसी सिनारियो को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ जो है वो दरो दीवार कभी झगड़ते हैं आपस में कि मैंने सपोर्ट दी हुई है, छत कहती है कि मैंने साया दे रखा है, और खिड़कियाँ कहती हैं कि मैंने जो है वो आमद व रफ्त के लिए छोड़ा है, नसीम की, हवा की, सबा की। सो जब ये सारे के सारे कोई क्लैमर करते हैं तो दिस हाउस गेट्स डिवाइडेड, एंड द टाइटल ऑफ दिस मिडल इज ए हाउस डिवाइडेड। बिफोर आई गो ऑन टू माई other routine stuff that I keep talking about during my talk sessions, उसके बाद एक आपको बहुत ही प्यारा गीत सुनाऊंगा। और वो गीत जो है वो आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला गीत होगा, ये मेरी गारंटी है। Wading through the aisle in a castle, I witnessed a tumultuous scene. I hid behind a column and heard the goings on. Good Lord, do the structures too suffer from a superiority complex and air their assertions of self-importance deep-rooted in their stone psychology? Stone psychology. A house divided. The raised pulpit was an audience to the deliberations. Pinnacles were clamoring their claims on arches, cloisters, and even roofs. Our pointed ends, aiming high, surge above all while getting pulled down. Why should we be the only targets? An arch rival in between, in the parenthesis, an arch sneered and silenced the pinnacles. It's because of your soaring ambition. My dears, don't you remember Icarus, the wax wings, nearing the sun, falling flat, down to earth? Now down to earth is again having two meanings here. The windows whispered to each other and put forward their claim. We allow views, and not from the inside but also from outside, and thus facilitate transparency. We initiate communion without porous casements to make marriages of convenience, or elope sometimes to make strange bedfellows. The ladder in a corner chuckled and whispered in the ears of the palmets, why do they need curtains then? Windows, even eavesdropping on the ladder, retaliated. Gone are the days of glass houses. The parapets chimed in for windows. We too have fired from. Then why blame only the curtains? An opening, after all, is an opening.
An announcement from the pulpit reminded everyone that scandalous, thorny, and intricate issues belong to lobbies, balconies, corridors, etc. Every word has a different connotation. You will see in this middle. When I talk about corridors and balconies and lobbies, I am talking about politics. So kindly connect each and every word of this middle with something which is intended to be conveyed. While in India, India behave like the Indian structures do. The walls which had remained silent, then seconded the reminder from the pulpit and asked the lobby to come forward. The main issue with us, the lobbies today, is that whatever transpires here gets passed on to the fourth estate via the corridors, even as a powerful claim is made of maintaining secrecy, said the lobby. On a point of personal explanation, the corridors said they too shared walls and could not avoid sharing information which gets resounded. Meanwhile, Priyanka Lamba has joined. Welcome. Ashok Batraji has joined. Welcome. Stone Psychology. Wow, and what nice words in the middle. Molten wax wings of Icarus. Yes, sir. Thank you very much. Now it was the turn of Roof, admitting vicarious responsibility to take affront to these remarks. Well, we too share many things with almost every day here. And you will kindly acknowledge above you, the roof, above you. Don't we see two collapse? Don't we two collapse sometimes with all that burden and our own weight? We wonder what would happen if supporters like walls, pillars, columns, arches were not there. Even Robert Frost wondered, something there is that does not love a wall. It brings it down. Is it not swearing by our common minimum cemented program? Now cemented program again is having a double, is having a pun here. Our duty to let the edifice not fall. The balcony from a vantage point, looking askance at the watchtowers through the windows, appreciated the plight of the roof and took to task the lobbies and the corridors for their belligerent postures, irresponsible utterances, scheming tendencies, and forging alliances. It doesn't lie in my mouth to be praising myself, but then this is a wonderful political satire. The altar looked upward and scoffed at the balcony. From there you can only make tall claims, blowing to winds the reality that genetically you hang in balance. Balconies hang in balance. And it is only us who get trampled with heavy boots and nimble feet. Alike, you can only find fault with others. From a quaint corner, the stairs stared at the balcony and altar to remind, if stairs was not the case, both balcony and altar would not have been able to reach one another. From the altar to the balcony, there is a staircase. So if the staircase wouldn't be there, so it was difficult to reach from the altar to the balcony. The pillar I was leaning on proved to be a stumbling block. Now I am describing this scene and I am leaning against a pillar and there is a stumbling block. So a political satire. The pillar I was leaning on proved to be a stumbling block and gave way, shouting in apprehension, "Who's there?" And before I could gather myself, I was cornered from all sides. "Who's there? What is he doing here?" I wanted to flee through the window, but a curtain held me back. A bat flapped its wings and cautioned the traders in the adjoining horse stable. Hey, he is an innocuous one, a creative writer to be precise, known to be building castles in the air. But beware, he may tell the world the secrets of the house. And the house divided. So this was a political satire that I wrote long back and it was published in the Tribune. So today's topic, I'll come straightway on because I also sing a song also for you. Principal Bhupinder कहते हैं, balcony from a vantage point, reading between the lines, political colors are under veneer of puns. Thank you very much, sir. So before Colonel Jagtar is with us today, and although we have been staying with him in Victoria, or at least half a dozen times we have been to his place and Manna's place, and we have stayed with them, a wonderful couple there.
But once we were, you know, some half a dozen people, and we needed to have a hotel. And from a place called Sydney, and we drove up to Victoria. और जैसे ही हम लोग विक्टोरिया की तरफ जा रहे थे, और हम लोगों को एक होटल भी लेना था, और हम लोगों ने देखा कि एक साइन बोर्ड लगा है बहुत बड़ा सारा, और उस बड़े बड़े सारे साइन बोर्ड पे लिखा है मेंशन दिस बोर्ड एंड क्लेम 25% डिस्काउंट इन द होटल टैरिफ। हाय कॉमेडी। सो कर्नल जगतार विल वॉच फॉर मी। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा वैसे ही एडवर्टीजमेंट के लिए लगाया हुआ है बोर्ड, कौन 25% देता है, जस्ट टू मेंशन हु, एवरीबडी विल गो एंड मेंशन इट टू द काउंटर that well we saw your board, but it actually so happened we went in the lobby, and against the counter we negotiated the tariff, etc., and we booked a room. The moment we were about to check in, we mentioned the board to the person manning the counter, and we said, okay, you have put up a board saying that you mention this board and get 25% discount. Oh yes, you get 25% डिस्काउंट। हम लोग तो हैरान रह गए। यानी देखिए एडवर्टीजमेंट का क्या तरीका है। आज का टॉपिक यही है कि एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट, क्या है एडवर्टीजमेंट, क्यों करना ज़रूरत पड़ती है एडवर्टीजमेंट, क्यों एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में वी नीड टू प्रोड्यूस थिंग्स एंड वी नीड टू advertise those things, at the top of our voice, or clamoring claims and making claims and telling the people at large that this is the only a product which is reliable, and this is reliable because I am using it. And who am I? Maybe Amitabh Bachchan, maybe Shah Rukh Khan, or maybe some sports personality. So अभी चंडीगढ़ में हुआ क्या कि चंडीगढ़ में एक कार खरीदी गई, और उस बंदे ने वो कार दिल्ली से परचेज़ की थी। तो उस कार पे उसने प्रिंट करा लिए कुछ स्लोगन्स, अच्छे स्लोगन्स जो पेट्रियाटिक थे, जो सोशल अवेयरनेस के थे, इस तरह के स्लोगन्स उसने पेंट करा लिए। एंड ही वांटेड टू गेट दिस कार रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़, बट द अथॉरिटीज दे रिफ्यूज्ड। लोग कहते हैं नो 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 नो, देयर इज़ नथिंग डूइंग, हम लोग तो प्लेन कार चाहते हैं, और उस पर ये तो खिलाफ है कानून के। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट केम टू द रेस्क्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन दैट पर्टिकुलर केस said that there is no harm. Somebody who is having some kind of a message to be given, so he can have the car registered in Chandigarh. Why not? तो मुझे स्मरण हो आया उन कारों, उन बसों का, ट्रकों का। आपने देखा होगा जिनके पीछे बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला से लेके और न जाने क्या क्या फड़े जाएंगे, ते वेखी जा, छेड़ी ना वेखी जा, इस तरह के लिखे होते हैं, इबारतें कह लीजिए, आयतें कह लीजिए। और ये सारी की सारी चीज़ें देख के, और इन चीज़ों का चलन आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत है। पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जितने भी ट्रक्स और बसेस हैं, दे आर सो ह्यूजली पेंटेड, और उसमें तरह तरह की शक्लें और बड़े बड़े वो स्लोगन्स और पता नहीं क्या, इट इज़ सो कलरफुल। एंड मैंने तो यूरोप में ट्रैवल करते हुए, इवन अमेरिका में भी ट्रैवल करते हुए कई बार ट्रेन्स भी ऐसे देखी हैं कि जिन पे एडवर्टीज़मेंट जो है वो होती है। एडवर्टीज़मेंट्स के साथ साथ जो है हमें बहुत, अगर आप लोग मेरे एज ब्रैकेट के हैं, सभी लोग जो आसपास हैं, जो मेरा टॉक सेशन देख रहे हैं, उनको याद होगा बिनाका गीत माला के टाइम पे, और सुबह 8 बजे जो है वो, गुड आफ्टरनून कांता जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, एक घंटी बजा करती थी, और टन की आवाज़ आके एक आवाज़ भारी सी बोला करती थी, लोमा टाइम, इट्स 8 AM। सो वो कुछ एक हमें याद हैं जो एडवर्टीज़मेंट हुआ करती थी। और आजकल एक ज़माना और आ गया कि एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ आप एक टैग लाइन भी लगाते हैं। वो टैग लाइन भी मैं आपको बताऊंगा क्या जो है वो होता है। और जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन एक ख़ास किस्म की जो है वो क्रीम लगाते हैं, या अमिताभ शाहरुख खान कोई चीज़, या कोई
धोनी जैसा आदमी कोई चीज़ का इस्तेमाल करता है, चाहे एक पर्टिकुलर खुशबू ही है, तो इट डजंट एड अप टू हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दी मैचेस। प्रीतम ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी टू सी यू। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, जी आई नो है, वेलकम, प्लीज़ जॉइन अस, यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑन द फेसबुक एंड वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। सो कुछ एक जो एडवर्टीजमेंट्स थी हम लोगों के बचपन की भी कह लीजिए, जिसमें कोलगेट आ गया, लाइफ बॉय की होती थी, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, और तंदुरुस्ती है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ तंदुरुस्ती है जहाँ। सैरिडॉन की एक एडवर्टीजमेंट आया करती थी, 2 गोलियाँ रखी हैं, 2 डॉक्टर वाइट कोट पहने हुए जो है वो दिखाई देते थे, और सर दर्द मिनटों में गायब। ये तरीके होते हैं टैगलाइन लगा के, और उसको आप बेचते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं। और कुछ एक तो एडवर्टीज़मेंट्स ऐसी थी कि जो आपको याद होगा, सर दर्द कर दिया करती थी। वीको वज्रदंती, वीको 5 मिनट लंबी वीको वज्रदंती की ऐड हुआ करती थी। और आप भी पान पराग के शौकीन, हमें तो पता ही नहीं था आप पान पराग के शौकीन। अरे बारातियों में पान पराग का इंतज़ाम कीजिए। और ये कुछ एक एडवर्टीजमेंट थी जिसमें छींक आ गई और कहते अरे कुछ लेते क्यों नहीं। ये जो टैगलाइंस थी, ये एडवर्टीजमेंट्स थी, ये दे हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर ब्रिंगिंग अप एंड आर past experiences that we have had of advertisements. और एक और आपको याद होगा, निरमा की ऐड आया करती थी। निरमा गर्ल वॉज अ फेमस गर्ल, शी वॉज अ वेरी प्रिटी लवली चाइल्ड, निरमा जो है वो। और फिर ये भी आया कि एक ख़ास टाइम था, ये सुनील बाबू और क्या चाहिए, आजकल एक और है, वो पेंट पे दिखा के बताते थे कि ये सुनील बाबू क्या कर रहे हो सुनील बाबू। आजकल एक और भी आता है कि बस, कहते हैं हाँ बस और क्या चाहिए। सो और क्या चाहिए, ये दीज आर टैग लाइन्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टैग लाइन्स। जैसे वेदर इट इज़ अ कोइंसिडेंस और इट वाज डेलिबरेट, आई डोंट नो, बट जैसे जया भादुड़ी, हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज और ये लोग जब पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा लोकसभा में थे, तो निरमा की टैगलाइन जो है वो बड़ी गाई जाया करती थी। हेमा, रेखा, पुष्पा और सुषमा और जया, सबकी पसंद निरमा। सो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट दे वर देयर। एंड देयर वर सर्टन शूटिंग्स ऑल्सो, विमल शूटिंग पहनिए। मुझे याद है मेरे साथ बहुत पहले दिल्ली में जब मैं एडिटर हुआ करता था, बिफोर ज्वाइनिंग द पुलिस, सो आई केम अक्रॉस अ फोटोग्राफर हु वाज गुड लुकिंग, हैंडसम मैन। एंड फोटोग्राफर के अलावा ही वाज सो वेरी नाइसली टर्न्ड आउट। वो ड्रेसेस बहुत ही गजब गजब की पहनता था। एवरी डे ही यूज्ड टू वेयर a new set of clothes and उसको देख के हम कहते हैं यार तू बहुत ज़्यादा जो है हमारे बराबर तुझे तनख्वाह मिलती है, लेकिन तू इतने। सो ही वॉज ऑन द पे रोल ऑफ अ क्लोथ्स शोरूम, जहाँ सूटिंग्स और शर्टिंग्स और इनके जो है वो कपड़े और फैब्रिक मिला करती थी। And he and his girlfriend, they used to wear those clothes, suits and dresses and roam around in Connaught Place and inviting attention from people, और ये कि उसी तरह की कोई चीज़ वहाँ सिलाने के लिए उपलब्ध हो जाए। तो ये एक कपल हमने देखा था। मतलब आपके एडवर्टाइजमेंट के पता नहीं क्या क्या तरीके हैं। वेलकम शकुंतला जी। प्रिंसिपल साहब कहते हैं फेविकोल वी फिक्स एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रोकन हार्ट्स। यस, दिस इज़ ऑल्सो देयर। और वो एक और लॉरी एक चलती है इस तरह से झटकोले खाती हुई, और उसमें 10 की भी कैपेसिटी नहीं और 150 आदमी बैठे हैं, वो भी सारे के सारे फेविकोल से जो है वो चिपके हुए हैं। जैसे बिल बोर्ड्स में भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। बिल बोर्ड मुझे लंदन का बहुत फेमस जो है वो TDK और ये लाइट्स फ्लैशिंग। हमारे अपने देश में जो है वो इन चीज़ों का ज़्यादा चलन अभी हुआ है, बहुत पहले से नहीं था। लेकिन पहले से यदि देखा जाए तो हम लोग अभी पिछले बरस यूरोप के टूर में थे, तो
प्राग में हमने देखा एक वॉल है कोई 100-150 मीटर लंबी, और उस वॉल पे ब्यूटीफुल ग्राफिटी इज़ देयर, और उसकी हिस्ट्री इट्स कॉल्ड बुलोन वॉल। और उसकी हिस्ट्री ये थी कि जब रिवोल्ट हुआ और स्टूडेंट्स ने की, तो बुलोन नाम का एक व्यक्ति था जिसने उस पर ग्राफिटी लिखना शुरू किया, एंड द स्टूडेंट्स दे ऑल्सो जॉइंड इन, एंड एवरीबडी रोट हिज और हर slogan on that wall, and it's a beautiful wall even to this date. You can go there, take your stuff and paint something, some kind of a graffiti is there. So एक और जो है वो मुझे एडवर्टीज़मेंट बड़ी अच्छी लगती है, वो जिसमें ड्यूरासेल की एक एडवर्टीज़मेंट है जिसमें क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो आज से 40-50 साल पहले के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनसे लेके आज तक मॉडर्न डे के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी तस्वीरों के साथ उनकी क्वीन की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। और ड्यूरासेल विच मीन्स दिस इट इज़ ड्यूरेबल, ड्यूरासेल बैटरी जो है वो ड्यूरेबल है, ये कहने का उनका जो है वो मतलब। एक और वो होती थी वो जिसमें आदमी एक वो पग जो है वो डॉग पीछे पीछे आता है सॉक्स लेके कि आप भूल गए, तो ही इज़ कैरिंग दैट थिंग इन हिज माउथ एंड ही हैंड्स इट ओवर टू यू, एंड वो एयरटेल की शायद थी या किसी सर्विस प्रोवाइडर की थी कि यस द नेटवर्क फॉलोज यू एवरीवेयर वेरेवर यू गो। और कुछ एक जो है वो मुनादी की भी एडवर्टीजमेंट्स का एक स्टाइल हुआ करता था, आजकल तो नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में एक लाउड स्पीकर लगा लिया करते थे। और करनाल का मुझे याद है एक सरदार जी थे बहुत ही मशहूर, उनके पास फुर्सत ही नहीं थी, एंड ही वाज सच अ सॉट आफ्टर पर्सन हु वाज ऑलवेज इन डिमांड फॉर व्हाटएवर मुनादी जो होती थी। उससे भी पहले के ज़मानों में तो ढिंडोरे पीटे जाया करते थे, मुनादियाँ हुआ करती थी, चस्पे लगाया जाया करते थे, नोटिस दीवारों पे घरों पे पेस्ट किए जाया करते थे। आजकल तो तरीके बदल गए हैं, मॉडर्न ज़माना है, लेकिन ये एडवर्टीज़मेंट के तरीके मुझे याद है। मैं बचपन में जींद में पढ़ा हूँ, और रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। रेड एंड वाइट की एक ऐसी एडवर्टीज़मेंट कैंपेन मैंने देखी थी कि जिसमें एक महिला आगे आगे चलती है लाल रंग के जो है वो अटायर पहने, और उसका मुंह जो है वो एक बहुत बड़ी अंडे नुमा शेप है उसकी, और उसमें से वो देखती है, और उसके पीछे 4 स्टिल्ट्स पे चलते हैं लोग वाइट पैंट पहन के और वाइट शर्ट पहन के, सब ने हैट लगाया हुआ है रेड एंड वाइट। और वो जब 5 लोग, एक महिला का, वो भी पुरुष ही था वैसे तो, लेकिन वो महिला की ड्रेस में होता था, वो महिला आगे चलती थी और 4 स्टिल्ट्स पे वाइट स्ट्रिप्स की पैंट पहन के वो चलते थे, एंड इट वाज अ रेज। वो एडवर्टीजमेंट का तरीका मतलब इतना नायाब था, मुझे याद है बचपन का, कि उससे बेहतर मैंने कोई देखा नहीं। उसके बाद भी जैसे रिक्शा वगैरह पे पोस्टर लगा के आप ढोल बजा के, और सिनेमा में अगर कोई नई फिल्म आई है उसके 4-5-6 रिक्शे इकट्ठे निकला करते थे, आगे एक झुंझुने बजाने वाला आदमी, ढोल वाला आदमी, और रिकॉर्ड प्लेयर बजता था, और उसमें एडवर्टीजमेंट जो वो नॉवल्टी में आग लगी, नॉवल्टी में आग पिक्चर का नाम था, ये हुआ, इस तरह के जोक्स जो वो चलते थे। और जो पोस्टर्स थे, पोस्टर्स पे भी ऊपर एक टैगलाइन कह लीजिए या कुछ, उसमें खुल गया खुल गया खुल गया, बिकाऊ है आपके शहर में खुल गया, इस तरह की जो है वो। अखबार और मैगज़ीन्स ये बिना एडवर्टिजमेंट के नहीं चलते, और आजकल तो ज़माना फिर बदल गया। मैं यही कहूँगा, अखबारों में 2 ईयर पैनल्स होते थे जो टॉप कॉर्नर्स पे एडवर्टिजमेंट होती थी, देवर कॉल्ड ईयर पैनल्स, एंड एनीथिंग गोइंग इन द ईयर पैनल्स यूज्ड टू बी द बेस्ट एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट। फिर कंप्रोमाइज़ होने लगा, बिकॉज फ्रंट पेज ऑफ ए न्यूज़ पेपर नेवर यूज टू कैरी एनी एडवर्टिजमेंट, दैट वाज द पॉलिसी of yesteryear newspaper editors। लेकिन आज के दिन तो बॉटम स्प्रेड ले लीजिए, हाफ पेज ले लीजिए, और तो और 2 पेजेस एडवर्टिजमेंट के आप अखबार के मेन पेज से पहले जोड़ देते हैं जस्ट टू अर्न रेवेन्यू। एंड न्यूज़पेपर की जैसे रिपोर्टिंग, ये जो है एडवर्टाइजिंग है, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट, बट
इसके बिना इनका जो है वो न्यूज़पेपर्स का काम नहीं चलता। आजकल तो एक और आ गया एडवर्टाइजमेंट का, आपके पेपॉल और पेटीएम से आप कैशबैक लेते हैं, कार्ड्स में पॉइंट्स आपके ऐड होते रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो स्टाइल ऑफ एडवर्टाइजिंग। और जो जो कुछ एक सिंबल्स हम लोग लेके चलते हैं जिनको मैस्कट्स बोलते हैं। सबसे पहला मैस्कट मुझे तो जो याद है वो एयर इंडिया का है। उसमें वो जो महाराजा थोड़ा झुके रहते हैं, लाल सा चोगा और वो पहन के। सो ये मैस्कट्स जो है वो अप्पू, एक को छोटा हाथी हुआ करता था, और आपके ओलंपिक्स के भी अलग अलग होते हैं। ये दीज आर ऑल्सो एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स जो है वो। मुझे अगर आप पूछें तो आज के दिन जो है वो सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट, टैगलाइन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और लक्स कोजी फिट है या फिट है बॉस, और डॉलर कहाँ है वो उसने अपने अंडरवियर में छुपा रखे होते हैं। और भी तरह के जो है ना वो कई जो है वो शारीरिक कमज़ोरियों को लेके दवाइयों के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ख़ास तौर पे एफ्रोसीडेक जो है वो मर्दाना ताकत पाइए, ये करिए वो करिए। ऑल दो 30 साल की उम्र में 60 साल के बूढ़े और 60 साल की उम्र में 30 साल के जवान, कुछ इस तरह की भी एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो चलती हैं। सो ये एडवर्टाइजमेंट का जो वर्ल्ड है ये अपने आप में बड़ा ग्लैमर भरा है, ग्लैमरस। जब तक आप उसकी जो है ना वो प्रोजेक्शन नहीं करते हैं तो तब तक कोई बात बनती सी नहीं लगती है। जब तक अमिताभ बच्चन ने ये ना कहें कि गुजारो कुछ दिन गुजरात में, तब तक बात नहीं बनती। आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा चला करती है। और आपने देखा होगा जो फिल्मों के ट्रेलर्स भी हैं, ट्रेलर्स भी एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट है। और हम लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा करता था। आजकल तो हम दुखी होते हैं कि कोई ट्रेलर आ गया। एंड बिकॉज इफ़ यू आर अ मूवी गोअर, आजकल तो बंद हो गया कोविड की वजह से फिल्में जाना, लेकिन यदि आपने हफ्ते में 2 या 3 फिल्में देखने का मन बना लिया, यू आर अ रिटायर्ड पर्सन, हॉलीडे ये वो, तो आपको बुरा लगता है कि वही ट्रेलर आपको बार बार दिखाया जा रहा है। एंड जैसा वो कहते हैं ना कि झूठ को आप 1000 दफ़े बोलिए तो वो सच प्रतीत होती है। यही एडवर्टाइजमेंट की दुनिया। यानी एक झूठ को आप कितनी ही दफ़े बोलिए और वो जो है वो ऐसा आहिस्ता ऐसे प्रतीत होती है जैसे यही शायद सच है। हमने सिएटल में देखा, सिएटल में प्लेन्स जो हैं वो जो लो हाइट पे चलने वाले ग्लाइडर प्लेन्स हैं, उनके नीचे बहुत बड़े जो है वो बैनर्स के झंडे नुमा चीज़ हैं जो वो बहती हैं। ऊपर प्लेन चल रहा है और नीचे ह्यूज बैनर इज़ फॉलोइंग द प्लेन इन द स्काईज। और यही सब कुछ जो है वो आप देखते हैं कि हर आदमी का अपना जैसे पीआर होता है, एडवर्टाइजमेंट से पीआर पे हम लोग आ जाते हैं। और हर एक आदमी का जो है वो अपना पब्लिक रिलेशनिंग का एक स्टाइल है, उसमें वो अपनी प्रोजेक्शन करता है, अपने बारे में कहता है, उसको उससे खुशी हासिल होती है। तो जैसा मैं कह रहा था कि मुझे यदि कोई टैगलाइन या एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगी तो जो बीवीपुर गांव है हमारा जींद में, उसका सरपंच जो हैं उनका काफ़ी विमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे बड़ा अच्छा काम है। और पर्दा प्रथा है, फीमेल फिटिसाइड है या कुछ भी, तो मोदी जी ने भी उसको सराहा था। और सेल्फी विद डॉटर एक कैंपेन थी टू बी preparing ground and preparing social awareness about women and girls, that they are to be respected, protected and taken good care of. So दोस्तों यही आज सेशन में मुझे सीरियस बात तो यही करनी थी, जो मेरा एक स्टाइल है बात करने का। आज मेरा मन है कि मैं एक गीत आपको जाते जाते जो है वो सुनाऊं। अगर समय रहा तो आपको पोएम या वो मैं देखूंगा, लेकिन ये गीत जो है वो 4-5 मिनट का लंबा है और हो सकता है मैं इससे निभा ना कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ऊंची रेंज में मोहम्मद रफ़ी साहब ने
ये गीत गाया है। और आज चूँकि हम शहीद उधम सिंह जी को याद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी ही चीज़ प्रस्तुति देने को मन है जो देशभक्ति से वाबस्ता हो और हमारे सोशल सामाजिक आचार विचार से जो है वो वाबस्ता हो। सो गीत में जो है वो पेश कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कीजिए अगर हेलो 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 तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने उसे भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है।
नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न जिसमें हो वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसान की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले, इंसान की लाशों, ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के वजरू है चमन बेचने वाले, कांटों के वजरू है चमन बेचने वाले। तो इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसी गीत के साथ आप सभी को ईद की एक बार फिर बधाई और हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। होप यू लाइक द प्रोग्राम टुडे। आई एम नॉट गिविंग यू एनी नज़म्स और poems of mine today because it's already time, it must be 35 minutes or so. कर्नल साहब कहते हैं वेरी नाइस, इट्स वर्थ कीपिंग। अभी एक इन अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड, यस, कर्नल जगतार विर्क जो है वो कनाडा में रहते हैं और यस अभी तक जाग रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड सेव और सत श्री अकाल टू एवरीवन एट होम। So all the folks, thank you very much for joining me in my talk show. So till tomorrow it's a Sunday, let me have some other plans for Sunday. Until tomorrow 12 noon, Deswal's talk show. Bye bye, have a nice day, enjoy yourself and a happy Eid to you all.